بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور رمضان شریف کا جو مقدس مہینہ ہے وہ آپ کا بہت نیکی میں گزر رہا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی بہتری فرمائیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات، اور اس ٹاپک پہ ہمارے اسٹوڈنٹ نے اپنے خیالات کا اظہار اچھے انداز سے کیا ہے۔ کچھ دیر بعد آپ ان کے خیالات ملاحظہ فرمائیں گے۔ اسٹوڈنٹ، پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں یہ کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتے جب تک یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ حل نہیں ہوتا۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے۔ پاکستان نے اور ہمارے پاکستانی لیڈرز نے بھارت سے مسئلے کے حل کی بات کی ہے، تعلقات کی بہتری کی بات کی ہے، لیکن بھارت نے ہر جگہ پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، ہر جگہ پاکستان کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کا میڈیا آپ دیکھ سکتے ہیں، سیاستدان ان کے دیکھ سکتے ہیں، ان کی فلمیں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر جگہ پاکستان کو وہ نیچے دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور نہیں چاہتا بھارت کہ پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو۔ کشمیر جو ہے پاکستان کی شاہ رگ ہے، اور کشمیر پاکستان کا ہی حصہ ہے جس پہ انڈین نے غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ نہتے جو مسلمان ہیں کشمیری، ان کو آئے روز ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک سال تقریباً ہونے والے انہوں نے لاک ڈاؤن کیے ہوئے کشمیر کو اور محسود کر کے رکھا ہے، اور لاک ڈاؤن کے دوران کیسی لائف ہوتی ہے ابھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اور یہ تو کوئی لاک ڈاؤن تھا ہی نہیں جو ہمارا یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل لاک ڈاؤن تو کشمیریوں کو انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تعلیم کے دروازے ان پر بند ہیں، معیشت کے دروازے ان پر بند ہیں، جانوروں سے برا سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جوان مسلمان کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ چھوٹے مسلمان جو بچے ہیں کشمیری، ان کے ساتھ کتنا ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اگر انڈین لیڈر جو ہیں، جن کو لیڈر کہنا بھی، میں کہتا ہوں لیڈر کی توہین ہے لفظ کی، اگر وہ ہوش کے ناخن لے اور کشمیر کا مسئلہ حل کرائے تو دونوں ممالک جو ہے ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتے ہیں۔ دونوں ممالک معیشت کے لحاظ سے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں، خوشحالی کی جانب بڑھ سکتے ہیں اور بے تحاشا فوائد حاصل کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ انڈین جو ہیں یہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشمیر کے مسئلے کو حل کرائیں۔ جب تک یہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرائیں گے تعلقات میں کبھی بہتری نہیں آ سکتی۔ مزید جو پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے، پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے، یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے پوائنٹ آف ویو آپ سنیں گے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ، یہ میرا جو واٹس ایپ نمبر ہے نیچے میں دیا ہے، اس گروپ پہ کو آپ جوائن کیجئے۔ واٹس ایپ کا میرا گروپ ہے لیکچرز آف سر عمران کے نام سے۔ اس نمبر پہ آپ واٹس ایپ کریں، اپنا نام، شہر کا نام لکھ کے تو آپ کو لنک سینڈ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو میرے نوٹس ہیں انیشل ٹیسٹ اور ISSB کے، آپ ضرور منگوا لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آئیے سنتے ہیں اسٹوڈنٹس کی آرام۔ السلام علیکم، میرا نام قمرزمان ہے اور میرا تعلق ملتان سے ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پاک بھارت تعلقات۔ اگر پاک بھارت تعلقات کی بات کی جائے تو پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں ہمیشہ اختلافات رہے ہیں، جس کی سب سے مین وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے۔ اسی طرح پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ مثبت رویہ اختیار کیا، لیکن بھارت نے کوئی بھی سنجیدہ رویہ اختیار نہیں کیا۔ اسی طرح 1960 کی بات کی جائے تو 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلہ پر سندھ طاس مادہ ہوا، جس کی بھارت نے کئی دفعہ خلاف ورزی کی۔ اسی طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان 1971 وار کے بعد مذاکرات ہوئے، جس کے مطابق پاکستان اور بھارت اپنے اختلافات کو باہمی مذاکرات سے حل کریں گے۔ 1982 کی بات کی جائے، 1985 کی بات کی جائے، 1985 میں سارک جنوبی ایشیائی تنظیم کی مدد سے پاکستان اور بھارت میں تعلقات کو بڑھانے کے لیے مذاکرات کروائے گئے، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ 1988 میں سار کانفرنس میں پاکستانی وزیر اعظم اور بھارتی وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی،
جس میں معاہدہ طے پایا کہ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے جوہری مراکز پر حملہ نہیں کریں گے۔ اگر 1990 کی بات کی جائے تو 1990 میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی، جس جو مزید آگے نہ بڑھ سکی۔ اسی طرح 14 to 17 جولائی 2001 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک آگرہ کانفرنس ہوئی، جس میں صدر پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی۔ یہ 3 روزہ مذاکرات کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ اسی طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان 2004 میں اسلام آباد میں سار کانفرنس ہوئی، جس میں پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کے پاکستانی اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات طے پائے اور کئی معاہدے اور سمجھوتے طے پائے۔ اسی طرح 2013 میں اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی میں پاکستانی وزیر اعظم اور بھارتی وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی اور دونوں مذاکرات کو مزید جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا۔ اور اب بھی پاکستان اقوام متحدہ میں 2019 میں وزیر اعظم عمران خان پاکستان مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں اٹھایا، اور جس کا اب تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈس، دوستوں، میرا نام فیصل سعید، میرا تعلق بلوچستان کے ڈسٹرکٹ سوراب سے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ نوٹس میں نے سر عمران صاحب سے منگوا لیے اپنے لیے اور اپنے ایک دوست کے لیے۔ کچھ دنوں پہلے میں نے پاک آرمی کے لیے اپلائی کیے تھے اور میرا خاص پریپریشن نہیں تھی، تو میرا کنٹیکٹ سر عمران صاحب سے ہوا تھا۔ میں نے سر عمران صاحب نے مجھے بہت اچھے سے ایڈوائز کیے تھے ماشاءاللہ، اور یہ نوٹس مجھے کل مل گئے۔ یہ بہت ہی اچھے نوٹس ہیں، اس میں اکیڈمکس ہے، وربل، نان وربل، سارا کچھ A to Z سب کچھ ہے۔ تو جو بھی فرینڈ مطلب پاک آرمی کے لیے، ایئر فورس کے لیے یا پاک نیوی کے لیے اپلائی کی اور اس کے خاص پریپریشن نہیں ہے، وہ سر سے کنٹیکٹ کر لیں اور سر سے یہ نوٹس منگوا لیں۔ یہ بہت ہی اچھے نوٹس ہیں، اور سر کے ساتھ ہی ایک یوٹیوب چینل بھی ہے، واٹس ایپ گروپ ہے، واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیں اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں۔ سر ڈیلی بیسس پہ وہاں پہ ویڈیو انیشیل کے حوالے سے، ICB کے حوالے سے اپلوڈ کر لیتا ہے۔ والسلام۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام شاہزیب راجپوت ہے اور میرا تعلق ٹنڈوا دم ڈسٹرکٹ سانگڑ سے۔ دوستوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات۔ تو دوستوں، اسٹارٹنگ سے ہی پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر نہیں رہے ہیں، اور انڈیا جو ہے پاکستان کے اندر پیس نہیں چاہتا ہے، امن و امان کی صورتحال نہیں قائم کرنے دیتا ہے۔ تو دوستوں، کچھ بیسک انفارمیشن دے دوں میں آپ کو۔ پاکستان نے 14 اگست 1947 کے اندر برٹش سے آزادی حاصل کی، اور انڈیا نے 15 اگست 1947 کے اندر برٹش سے آزادی حاصل کی۔ تو دوستوں، جو پرابلمس ہیں جو کہ ایک بڑا ایشو بنی ہوئی ہیں، اور ان ایشو کو سالو نہیں کیا جا رہا، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دوستوں، پہلی جو پرابلم ہے وہ ہے 1948 کے اندر انڈیا نے کشمیر پر حملہ کر دیا اور اس پر قبضہ کر لیا اور اپنی فوجیں تعینات کر دی۔ یہ سب سے بڑا ایشو ہے جو کہ پورے سب کانٹیننٹ کا ہے، اور یہ ایشو حل ہونا چاہیے، لیکن انڈیا اس پر اپنی نظر گڑائے رکھا ہے اور اس پر ظلم ڈھا رہا ہے، اور کافی مہینوں سے کرفیو لگا ہوا ہے کشمیر کے اندر۔ تو دوستوں، گزارش ہے کہ مطلب اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جائے اور اس ایشو کو عالمی سطح پر اٹھایا جائے۔ تو دوستوں، دوسرا جو ایشو ہے وہ 1960 کے اندر پانی کا ہے، جو کہ حل ہو گیا تھا، لیکن بھارت اس کے خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اسے حل ہو گیا ہے، لیکن اس کو ایک فیصلہ آ گیا ہے، لیکن بھارت اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا اور اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ دوستوں، تیسرا ایشو یہ ہے کہ سیاچن میں جو کارگل وار ہوئی تھی، کافی زیادہ ایریا جو کہ بھارت نے کور کر لیا تھا، اور بھارت نے وہاں پر بھی حملہ کر دیا، اور کیا نام ہے، تو پاکستان نے بھی اپنی فوجیں بھیجی اور اور بھارت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اس میں سے کچھ ایریا کور کیا، اور جو کہ آج تک مسئلہ چلتا آ رہا ہے سیاچن کا بھی۔ تو دوستوں، انڈیا جو ہے اپنی ہیجمنی چاہتا ہے اس ہمارے ایشیا کے ریجنز پر، جو کہ اس کی جو یہ بیکار سوچ ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی، اور ہمیں ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے۔ وہ ڈی اسٹیبلائز کس طرح کر رہا ہے کہ وہ اس کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ تو دوستوں، انڈیا کا ساتھ امریکہ دے رہا ہے۔ امریکہ کیوں ساتھ دے رہا ہے؟ کیونکہ جو دنیا پہلے تھی
वो यूनिपोलर थी, लेकिन अब मल्टीपोलर होने जा रही है। और यूनिपोलर का मकसद कि पिछले सालों अरसों से एक सुप्रीम पावर चलती आ रही थी अमेरिका की, और अमेरिका सब कंट्री पर मतलब अपनी हुकूमत रखता था, अपने फैसले करता था। लेकिन अब मल्टीपोलर हो गई क्योंकि रशिया और चाइना उसके अगेंस्ट में आ गए हैं और उससे आंख से आंख मिलाकर देखते हैं, और उन्होंने अपने आप को स्टेबल कर लिया है इन दोनों कंट्रीज़ ने। और अमेरिका इंडिया की मदद कर रहा है ताकि इंडिया जो है हेजमनी मतलब बालादस्ती कायम करे, अपनी पहुंच ऊपर करे, और इंडिया पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करे, पाकिस्तान को आइसोलेट करे, पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहरान कायम कर दे, और पाकिस्तान के अंदर काफ़ी इश्यूज आ जाएं, और चाइना जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है वो नहीं करे, और चाइना को पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने से फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो। तो दोस्तों ये उनके मकासद हैं, और जो कि वो लोग चाहते हैं कि हमारे मकासद हमें हल हो जाएं, लेकिन इनके ये नापाक अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे जब तक हमारे अंदर यूनिटी है। और वो पाकिस्तान के अंदर एथनिक टेररिज्म कायम कर रहा है, और सिंधी, बलोची, पंजाबी इस तरह की दहशतगर्दी यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है बलूचिस्तान। और इसका साथ जो है अफ़गानिस्तान दे रहा है, क्योंकि अगर इंडिया जो है अफ़गानिस्तान के ज़रिए बलूचिस्तान में घुसेगा, और आपको मालूम है कि बलूचिस्तान एक वर्ल्ड वाइड ट्रेड सेंटर भी कह सकते हैं, वर्ल्ड वाइड ट्रेड सिटी भी कह सकते हैं उसे, और वहाँ पर ही हमारी सोर्स ऑफ माइन है, और वहाँ पर ही हमारे अजीम मतलब कीमती अशियाँ हैं। तो इंडिया उन पर कब्ज़ा करना चाहता है और उसके ज़रिए पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करना चाहता है, और वो पाकिस्तानाइजेशन ऑफ पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तानाइजेशन ऑफ पाकिस्तान दो टाइप्स की होती हैं। एक जो है वो आप जो कंट्री को है रीशिप कर दें। रीशिप करने का मकसद वो जो मुल्क है वो जो कंट्री है वो मुल्क से ही हटा दिया जाए, मुल्क से ही मतलब उसका नाम खारिज कर दिया जाए। और दूसरी जो बाल्कनाइजेशन होती है वो ये है कि वो मुल्क को इतना डीस्टेबलाइज कर दे, वो मुल्क को इतना कमज़ोर कर दे कि मुल्क के उसको पॉलिटिकली कोई और दूसरा कंट्री कंट्रोल करे और उसके मसाइल को देखे, उसके मतलब पॉलिटिकली दूसरा कंट्री उसे कंट्रोल करे। तो दोस्तों इंडिया ने जो पूरे मुल्क में सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे मुल्क में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल कायम करती है और सारे मसाइल देखती है और उन मसाइल को हल करने की कोशिश करती है, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को सार्क ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट बनने नहीं दिया और इंडिया सब एशिया के रीजन्स पर बालादस्ती कायम करना चाहता है। जैसे दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और सर इमरान को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद रशीद है, मैं अब्बाबाद का रहने वाला हूँ। जेंटलमैन, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो आपस में अक्सर ख़राब रहते हैं। इनमें अमन की जो जंजीर है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी है और आया दिन LOC पर भारत की तरफ से हमेशा फायरिंग होती रहती है और हमेशा नफरत भरे कामों में भारत की तरफ से पहल होती है, जिसकी वजह से भारत हमेशा जो है पाकिस्तान को ब्लेम करता है दहशतगर्दी पे, स्पेशली कि पाकिस्तान जो है इसने भारत में जितने भी दहशतगर्द पाए जाते हैं वो पाकिस्तान के भेजे हुए हैं। इसी तरह कश्मीर के जो मुजाहिदीन हैं वो अगर अपने हक के लिए जदोजहद करते हैं, जिहाद करते हैं, तो भारत हमेशा उनको पाकिस्तानी होने का नाम देकर हमारे मुल्क पर जो है बदनामी का धब्बा लगाने की कोशिश करता है।
जेंटलमैन, जैसा कि ये सब नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान एक जो है अमन पसंद मुल्क है। इस मुल्क में अकलियत और मुस्लिम दोनों को जो है बराबर हुकूक दिए गए हैं। जैसा कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पाकिस्तान में मुसलमान और हिंदू दोनों यकसा हैं, इनको बराबर हुकूक हैं, जहाँ चाहे रह सकते हैं, जिस इबादत जगह में चाहे वो जा सकते हैं। तो हमारा अक्सर जो तनाज़ा चल रहा है भारत पे, वो इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो मुसलमानों पर वो जुल्म हो रहा है, वो लोग कहते हैं कि हमें आज़ाद किए जाए, ठीक है, हमें भी जो है अपनी रियासत बनाने दिए जाए, जबकि भारत उन पे काबिज हुआ है और वो उनको जो है आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने हमेशा जो है कश्मीर की हिमायत की है और भारत को हमेशा पाकिस्तान में ने जो है मुज़ाकरात के थ्रू कन्वेंस करने की कोशिश की है कि आप जो है कश्मीर के मजलूमों पर जुल्म न करें, उनको आज़ाद कर दें ताकि वो अपना सुकून से रह सकें। तो चूंकि हिंदुओं को जो है मुसलमानों से जो है वो नफरत है, पाकिस्तान में 22 करोड़ से ज्यादा जो है मुसलमान रहते हैं, जबकि भारत में 30 करोड़ से ज्यादा आबादी जो है मुसलमानों की है, लेकिन वहां पर मुसलमान जो है सुख का सांस नहीं ले सकते। इसकी वजह यही है कि हिंदू यही चाहते हैं कि ये मुसलमान है, दुनिया का दूसरा बड़ा तरीन मजहब है, अगर तो हिंदुइज्म कम हो जाएगा और जो है मुसलमान जो है वो दुनिया में ज्यादा हो जाएंगे, इस्लाम जो है वो गलबा हासिल कर लेगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए हिंदुओं के मुताबिक। तो अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जो है गैर मुस्लिमों और जालिम लोगों के लिए यही दुआ की है कि अल्लाह पाक इन सबको हिदायत दे और इनको नेकी की राह में गामजन करे। इसी तरह आज भी पाकिस्तान में हर जुम्मे के दिन जब भी हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो हमारे जो इमाम साहब होते हैं वो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तमाम जो है दुश्मनान पाकिस्तान और जो है जालिमों को हिदायत दे। अगर इनके नसीब में अल्लाह पाक ने हिदायत नहीं लिखी तो अल्लाह पाक इनको नेस्तो नाबूद फरमाए। शुक्रिया। Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Safiuddin Mushtaq Ahmed Kalwar, District Gautki, Mirpur Mathela. Today my topic I speech is India-Pakistan relationships. Pakistan has not good relationships with India. These both countries are fighting from 1947 due to a violent partition of British India. In 1947, 1965 and 1971, these both countries fought war because of conflict of Kashmir and conflict of military. Both nations fought. And there is main reason that there are two countries and there is two religions are live in both countries. One there is Muslim, there is another is Hindus, and they both not live with each other safe. These both are different, and the main thing that is Kashmir. India claims that it's our land, and Pakistan claims that it's not, it's our land. We should make these both countries as a friend. If they can't stop this fighting, one day there will be World War III. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ज़ियाद अली ख़ान फ्रॉम मर्दान। आज का हमारा लेक्चरेट का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात। तो अगर हम देखें 1947 में जब सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हुई और पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग रियासतें कायम हुई, तो इंडिया जो है वो सेकुलर स्टेट बन गई और पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक स्टेट बन गई। पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात है उसकी ख़राबी की मेन वजह जो मैं समझता हूँ वो है कश्मीर इशू। क्योंकि अगर हम देखें तो 1948 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई वो भी कश्मीर के नाम पे हुई और बाद में जो कश्मीर का जो आधा हिस्सा था वो आज़ाद कश्मीर बन गया। फिर 1965 की वॉर की तरफ चलते हैं, वो भी कश्मीर के नाम पे लड़ी गई और उसका ख़ात्मा कुछ यूँ हुआ कि 1966 में प्रेसिडेंट अयूब खान और इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के दरमियान ताशकंद में जो पैक्ट हुआ, जिसको हम ताशकंद पैक्ट कहते हैं। फिर 1971 की वार की तरफ चलते हैं, वो खैर कश्मीर के नाम पे तो नहीं हुआ, लेकिन इंडिया ने बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्हें लड़वाया। फिर कारगिल वॉर की तरफ चलते हैं, 98-99 में जो कारगिल वॉर हुई वो भी उसका ख़ात्मा भी कुछ यूँ हुआ कि फिर वो 2001 में आगरा समिट हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी और प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने वो डॉक्यूमेंट साइन किए। मतलब कश्मीर के नाम पे किए, मतलब कश्मीर के नाम पे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात सिरे से ख़राब चले आ रहे हैं। इंडिया का स्टैंस है कि हम कश्मीर को बायलैटरल तरीके से सॉल्व करेंगे और पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि नहीं, हम मल्टीलेटरल
तरीके से इसको हल करेंगे, मीन्स सारी दुनिया को उसमें इन्वॉल्व करेंगे। फिर 2007 में समझौता एक्सप्रेस के जो हमले हुए, फिर 2008 में मुंबई पे हमले हुए, मीन्स जब जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेबल टॉक्स होते हैं तो इस तरह कुछ ना कुछ वाक़यात रोनुमा हो जाते हैं जिसकी वजह से वो टेबल टॉक्स रुक जाते हैं। अब रिसेंटली अगर हम देखें तो पठानकोट का जो वाक़या 2016 में हुआ, वो भी इंडिया ने डायरेक्टली पाकिस्तान को ब्लेम किया कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। और फिर 2018 में अगर 19 में अगर हम चले तो रिसेंटली जो पुलवामा का वाक़या हुआ है वो भी दुनिया के सामने है कि गलती किसकी थी। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान और भारत को चाहिए कि वो टेबल टॉक्स के ज़रिए अपने जो ताल्लुकात है वो बेहतर करें, और जंगों से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अगर हम पहली जंग अज़ीम को देखें, दूसरी जंग अज़ीम को देखें, तो उसका ख़ात्मा आखिर में टेबल टॉक्स की वजह से हुआ है। वस्सलाम। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to introduce myself. My name is Muhammad Abu Sufyan and I belong to district Muzaffargarh. Today our topic of discussion is the relationship between the Pakistan and Hindustan. जेंटलमैन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो दरमियान ताल्लुकात हैं कभी भी खुशगवार इस्तवार पर नहीं आ सके। शायद उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये मसला कश्मीर है। इस मसला कश्मीर को हल करने के लिए पाकिस्तान ने कई बार बातचीत पर जोर दी, लेकिन हिंदुस्तान नहीं माना। वो अपनी हट धर्मी पर कायम है और इसी मसला कश्मीर को मसला बने हुए पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात के उसमें 4 बड़ी जंगें 1948, 1965, 1971 और 1999 की जंगें लड़ी जा चुकी हैं। लेकिन इन सभी जंगों के दौरान पाकिस्तान का वजूद बरकरार रखा और अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान कायम दायम रहा। 1971 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग के बाद शिमला मुआहदा हुआ था, इसके मुताबिक ये पाकिस्तान और भारत के जो जौहरी हथियार हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ना लड़ने के लिए मुआहदा किया गया था। इसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई अहद पैमाने पर तिजारत भी हुई थी और दोनों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आई थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये ताल्लुकात भी काफ़ी हद तक ना रह सके, क्योंकि हम मसला कश्मीर को हल करना चाहते हैं। वो मसला कश्मीर से पाकिस्तान की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का तार है। अभी रिसेंटली 2019 में पुलवामा हमले का ड्रामा रचाकर उसने पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन पाकिस्तान भी फिर भी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। फिर 27 फरवरी को अपने 2 लड़ाकू त्यारे पाकिस्तान के अंदर भेज दिए, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ अपना दिफा किया। हालांकि जवाबी कार्रवाई भी हमने नहीं की थी। उनके 2 लड़ाकू त्यारे हमने गिरा दिए और उसके जो अभिनंदन था, विंग कमांडर अभिनंदन, हमने उसको वापस कर दिया खैर सगाली के ज़रिए। हमने सिर्फ अमन का दर्स दिया। पूरी दुनिया ने हमारी इस कोशिश को सराहा है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ अमन का दाई अमन चाहता है, जबकि भारत लड़ाई चाहता है। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात उस वक्त ठीक होंगे जेंटलमैन जब तक मसला कश्मीर हल नहीं हो सकता। तो आलमी बरादरी को इस पर नोटिस लेना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear friend, Assalamu alaikum. I am Asaf Ali Maher. I am from district Sangan in my province. So today I would like to share some points. The topic is the relationship between Pakistan and India. So जब पाकिस्तान 1947 में इंडिपेंडेंट कंट्री बना, एक मुल्क बना, एक मना दुनिया के नक्शे में आया, तो उसके बाद पाकिस्तान को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े। उसमें बुनियादी प्रॉब्लम थे कश्मीर का मसला, न्यूक्लियर पावर का मसला और पानी का मसला। कुछ तो मसले हल हो गए थे और उनमें से फिर कुछ मसले ऐसे थे जो अभी तक भी हल नहीं हुए। कुछ मसले फिर आगे पाकिस्तान को फेस करने पड़े। उनमें से पाकिस्तान को टेररिज्म और पाकिस्तान के लिए एक मसला बड़ा सीपेक के लिए भी इंडिया ने अपोजिशन पाकिस्तान के लिए बहुत की थी, और ये मसला और भी बहुत मसले थे। उनमें से कल्चरल के लिए भी उन्होंने इंडिया बना अगेंस्ट पाकिस्तान के लिए, कल्चरल के हिसाब से भी, और ट्रेड के लिए भी इन्होंने बहुत मसला पैदा किया इंडिया ने पाकिस्तान के लिए। तो मीन्स ये बुनियादी मसले हैं जो अभी तक भी कुछ हल हो गए थे पहले तक। कुछ कश्मीर का मसला अभी तक, ये तो बुनियादी मसला, इनके लिए तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2-3 जंगें भी लड़ी गई। तो ये बुनियादी मसला है। और पानी का भी मसला अभी तक मना चल रहा, और लाइन ऑफ कंट्रोल इस पर भी मना, बॉर्डर्स पर भी जो मसला, ये भी बड़ा मसला है। 2003 में एक बिल पास किया गया था, मना ये जो फायरिंग वगैरह होती है इस पर हम मना दोनों कंट्रीज़ क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, पर इंडिया उसके ख़िलाफ़ है। मीन्स मैंने फिर उन्होंने वही काम किया। अभी तक भी बॉर्डर पर मैंने हमारे नौजवान सिपाहियों को मना शहीद किया जा रहा है और कश्मीरों पे गोलियां चलाई जा रही। मना यार कश्मीरों के लिए एक ज़िंदगी तबाह कर दी उन्होंने, इंडिया वालों ने। मना वो उस जो कानून पेश किया था ना, वो उस पर खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और बहुत सारे मीन्स इंडिया ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की। उन्होंने अमेरिका से हाथ मिलाया क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए,
और ये ट्रेड वगैरह पाकिस्तान से रोका गया, और इस वजह से भी इंडिया को फ़ायदा। और पाकिस्तान को एक बेसिक बेनिफिट है कि इंडिया जो अपना ट्रेड अफ़गानिस्तान से करती है, पर पाकिस्तान ने वो रूट नहीं दिया है इंडिया को जो अफ़गानिस्तान ट्रेड करे। ये इंडिया के लिए ख़राब पॉइंट है। पर कुछ फिर जब इमरान खान पाकिस्तान के गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर बने, तो इमरान खान ने कहा भाई आप सेनेट पे वज़ीरों को बिठाएं। तो एक वहाँ पर एक यूएनओ में कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहाँ पर इमरान खान ने बोला आप सेनेट के वज़ीरों को बिठाएं और बात करें पाकिस्तान इंडिया के मसले के लिए। मोदी को भी कहा, पर मोदी ने, पर इंडिया वालों ने फिर 24 कलाक के बाद रिप्लाई दिया कि हम इस बात पर राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि वो चाहते भी नहीं अमन। तो पाकिस्तान तो चाह रहा है अमन, और इमरान खान ने कहा हम आपसे ट्रेड करना चाह रहे हैं, पर नहीं, वो इस बात पे राज़ी नहीं। बस ये मसले संगीन थे, अभी तक वो मसले चल रहे हैं। बस अल्लाह रहम करे अभी ये मसले हल हो जाए इंशाल्लाह, तो जो हमारा मुल्क भी तरक्की करे और हम दूसरे मुल्कों से भी अपने 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 जो कारोबार वगैरह कर सकें और हम तरक्की भी कर सकें। अल्लाह हमें तौफीक दे। तो गाइस अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम कमरजमान है और मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। आज का जो हमारा टॉपिक है पाक भारत ताल्लुकात। अगर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बात की जाए तो दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात रही हैं, जिसकी सबसे मेन वजह मसला कश्मीर है। अगर ये इशू हल हो जाता है तो दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने मसला कश्मीर को हल करने के लिए हमेशा मस्बत रवैया इख्तियार किया, लेकिन भारत ने कोई भी संजीदा रवैया इख्तियार नहीं किया। इसी तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के मसला पर 1960 में सिंतास मादा हुआ, जिसकी भारत ने कई दफ़ा खिलाफ वर्जी भी की है। अगर 1971 की बात की जाए तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिमला मादा हुआ, जिसमें पाकिस्तान और भारत अपने इख्तलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करेंगे। इसी तरह 1982 में जनूबी एशियाई तंजीम सार की मदद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसका कोई खातिरखा नतीजा ना निकला। 1988 में सार कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और भारतीय वज़ीर आज़म को मुलाकात का मौका मिला, जिसमें दोनों ममालिक में तय पाया कि दोनों ममालिक एक दूसरे के जोहरी मराकज़ पर हमला नहीं करेंगे। इसी तरह 1990 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई, जिसमें आमदरफ्त भी बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये ताल्लुकात मज़ीद आगे ना बढ़ सके। 14 to 17 जुलाई 2001 में पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर आज़म के दरमियान आगरा कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका कोई खातिरखा नतीजा ना निकल सका। इसी तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2004 में इस्लामाबाद में सार कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई समझौते तय पाए और मादे हुए। इसी तरह 2013 में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और भारतीय वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुलाकात हुई, जिसमें मुज़ाकरात को मज़ीद जारी रखने के लिए अदा किया गया। शुक्रिया।